حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نامور صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ بیعت خلافت اپنے ماموں شیخ سری سکتی رحمتullah علیہ سے حاصل فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ آپ 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق نہاوند سے تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا، اسی وجہ سے بغدادی کہلائے۔ آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے اور مامون الرشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء و فضلہ جمع تھے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سکتی رحمتullah علیہ نے کی۔ شیخ سری سکتی رحمتullah علیہ چاہتے تھے کہ آپ فکر و سلوک کی منازل طے کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف رہے۔ شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا، یہی کاروبار شروع کیا۔ آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ ان تمام حدود و شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایک وقت آیا کہ شیخ سری سکتی رحمتullah علیہ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سکتی رحمتullah علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے۔ تیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ تیسری صدی ہجری میں علماء و فقہا، ادباء و شعراء، صوفیہ و عرفاء، اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادی رحمتullah کی ذات گرامی ہی تھی۔ آپ کی حیات اس پوری صدی کو محیط اور ذات ببرکت اہلی صدی پر حاوی ہے۔ اس صدی کے اوائل میں ولادت باسعادت اور اواخر میں وصال باکمال ہوا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ سے تدوین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی، اس لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی و طہارت، علم و عمل کے زیور سے خوب آراستہ تھے۔ حضرت جنید رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سکتی رحمتullah کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان ثوری رحمتullah علیہ سے حاصل کیا۔ 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور 3 سال تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمتullah علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ اہل تصوف کے پیشوا تھے۔ وہ آپ کو سید الطائفہ گروہ صوفیہ کے سردار کہتے اور طاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے تھے۔ آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے، زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمتullah علیہ نے کشف المحجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ لکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کی ذات بابرکت علماء و فقہ، شعراء و ادباء، صوفیہ اور اولیاء کے درمیان آفتاب روشن کی طرح ہے جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت تو یہ ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بالاتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا۔ ہر عہد کے صوفیہ اپنا انتساب انہی کی طرف کرتے رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتullah علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف کے سلاسل اپنے اوراد میں باہم مختلف ہیں لیکن اپنے نسب میں سب حضرت جنید رحمتullah علیہ پر متفق ہیں۔ تصوف کے سلاسل حضرت جنید رحمتullah علیہ کے واسطے ہی سے اوپر کو پہنچتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمتullah علیہ نے جن 10 سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیہ جس کے مؤسس حضرت جنید رحمتullah علیہ ہیں، اور باقی 9 سلسلوں میں سے 5 ایسے ہیں جن کے بانیوں کا حضرت جنید رحمتullah علیہ سے گہرا قریبی اور روحانی تعلق ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 8 اوصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے: سخاوت، رضا، صبر، خاموشی، غربت، سیاحت، گدڑی اور فکر۔
یہ 8 वसाफ 8 बरगजीदा अंबिया में से हैं। सखावत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है कि आपने अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश किया। सब्र हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरफ से कि आपने इंतहाई मसाइब पर सब्र फरमाया और अल्लाह की जानिब से आजमाइश पर साबित कदम रहे। खामोशी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से कि आपने 3 दिन तक लोगों से इशारे से कलाम किया और अपने रब को आहिस्ता पुकारा। गुर्बत हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से कि अपने वतन में मुसाफिरों की मानिंद रहे और खानदान में रहते हुए अपनों से बेगाना रहे। सयाहत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आपने यका तन्हा जिंदगी गुजारी, सिवाय एक प्याले और कंघी के अपने पास कुछ नहीं रखा। जब आपने देखा कि किसी ने अपने दोनों हाथों को मिलाकर पानी पिया तो आपने अपना प्याला तोड़ दिया। जब किसी ने उंगलियों से बालों को कंघी की तो आपने कंघी भी तोड़ दी। गदड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आपने कीमती लिबास की बजाय मामूली लिबास पहना और फिक्र सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि जिन्हें कायनात के तमाम खजानों की कुंजियां अता की गईं और इरशाद हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को मुशक्कत में न डालिए बल्कि उन खजानों को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मुझे इसकी हाजत नहीं। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक रोज शकम सेर हूँ तो 2 रोज फाके में रहूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसमें ये 8 सिफात हो, समझ लो कि वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हुआ और अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया। आपका एक वाकया बयान किया जाता है। एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा कि हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। ऐ अबुल कासिम, तुम ही वो शख्स बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ। छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बात ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और जाहिरी अलूम के नुक्ते नजर में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है? सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा, बताओ तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दरूद व वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने की हैं सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की मिलावट हो जाए
تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کف افسوس ملتے ہوئے بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا، اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کی بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے۔ نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا، وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوش گلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا، در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے، اب نہ صاحب جائیداد تھا نہ دربان، فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے، جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرا جمع ہو کر داد و عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و الم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح سالم نہیں چھوڑے گا، لہٰذا مکان کے اندر جو ان سے محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں تبدیل
कर दिया गया और कैफ सुरूर की जगह शोर मातम बर्पा हो गया। एक मर्तबा निहायत पुरजोज लहजे में फरमाया, जो आंख हक ताला की सिफ्त को इबरत से न देखे उसका अंधा होना ही बेहतर है, और जो जुबान हक ताला का जिक्र न करे उसका कुव्वत गोयाई से महरूम होना ही अच्छा है, और वो कान जो हक ताला का कलाम सुनने का मुंतजिर न हो उनका बहरा हो जाना ही मुनासिब है, और जो जिस्म उसकी खिदमत न करे उसका मुर्दा होना ही बेहतर है। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह का वाज जारी था। एक सैयद साहब हाजिर खिदमत हुए। ईरान के रहने वाले थे और नासरी के नाम से मशहूर थे। सैयद साहब हज के लिए जा रहे थे। घर से रुखसत होते वक्त उन्होंने नियत की थी कि बगदाद पहुंचकर सबसे पहले हजरत शेख जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के दीदार की सादत हासिल करूंगा। अपनी उसी नियत की तकमील के लिए सैयद साहब हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हाजिर हुए थे। सैयद साहब को देखकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? सैयद नासरी ने अर्ज किया, गिलान का रहने वाला हूँ, मगर शेख के दीदार की हसरत रखता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, चलें, आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मगर ये तो बताएं कि मेरे मोहतरम मेहमान का किस खानदान से ताल्लुक है? सैयद नासरी ने अर्ज किया, मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जिंदों की औलाद से हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद साहब, आपको मालूम है कि आपके दादा मोहतरम बैक वक्त 2 तलवारें चलाया करते थे? सैयद नासरी ने हैरत से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। सैयद साहब, आप रहमतुल्लाह अलैह की बात का मफहूम समझने से कासिर थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मेहमान को हैरान पाकर फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तलवार गर्दन कुफ्फार पर चलाते थे और दूसरी अपने नफ्स पर। सैयद साहब, आप कौन सी तलवार चलाते हैं? सैयद नासरी इस कलाम के मुतहम्मिल ना हो सके और फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। शेख, मैं खुदा के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा? पहले मुझे इस काबिल तो बना दीजिए कि अपने रब के सामने हाजिर हो सकूं। सैयद नासरी ज़ारो कतार रो रहे थे और तड़प रहे थे। शेख, खुदा की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाइए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा सीना हक ताला का खास हरम है, जहां तक हो सके उसमें किसी नामहरम को जगह न दो। जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, सैयद नासरी ने एक चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज की अजीब शान थी। तकरीर की असर अंगेजी का ये आलम था कि हाजरीन की अक्सरियत मुर्ग बिस्मल की तरह तड़पने लगी थी। बाज सामीन पर इस कदर वजद तारी होता था कि अपनी जानों से गुजर जाते थे, और जो होश में रहते थे उनकी आंखों से आंसुओं के आबशार जारी हो जाते थे। शिकस्ता दिलों, खस्ता दिलों, मोहताजों, मस्कीनों और जरूरतमंदों पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान करम हर वक्त खुला रहता था। उसके बरक्स आप रहमतुल्लाह अलैह की जाती महफिलों का ये हाल था कि वहाँ अहले ज़ौक़ के सिवा किसी का गुजर मुमकिन नहीं था। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह किसी हम मजाक दोस्त ने दावत दी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खुशी खुशी तशरीफ ले गए। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था कि एक शख्स मकान में दाखिल हुआ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स से वाकिफ थे। वो एक कम इल्म और बेज़ौक़ इंसान था। महफिल में आने वाला शख्स अभी बैठा भी नहीं था कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और अपनी चादर उतार कर देते हुए फरमाया, इसे ले जाकर रहन रख दो और जितनी रकम मिले उसकी शक्कर ले आओ। फिर जैसे ही वो शख्स चादर लेकर घर से बाहर निकला, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और दरवाजा बंद कर दिया। तमाम दोस्त बड़ी हैरत से आप रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल को देख रहे थे। दरवाजा बंद करने के बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बा आवाज़ बुलंद उस शख्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, सुनो मेरे अजीज, ये चादर मैंने तुम्हें दे दी, मगर खुदा के लिए आज की रात इधर का रुख न करना। अहबाब ने हैरान होकर उसका सबब पूछा तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक बेखबर और बेज़ौक़ इंसान हमारी मजलिस में चला आया था। मैंने अपनी चादर देकर उससे फरागत हासिल कर ली और आज रात की सोहबत को गैरों से बचा लिया। ये वाकया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की नफासत और आला ज़ौक़ की अक्कासी करता है, वरना आप रहमतुल्लाह अलैह की तवाज़ु और इनकसार का तो यह आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हजरत शेख अबू मोहम्मद जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह हज को तशरीफ ले गए। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह हज अदा करने के बाद वापस लौटे और बगदादी की हदूद में दाखिल हुए तो अहले खाने के साथ अजीजों और दोस्तों को अपना मुंतजिर पाया। तमाम लोगों ने हजरत शेख अबू मोहम्मद जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह का वालिहाना इस्तकबाल किया और घर चलने के लिए कहा। जवाब में हजरत शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब तक मैं एक शख्स की ज़ियारत न कर लूं उस वक्त तक न मैं घर में जाऊंगा और न कोई दूसरा काम करूंगा। दोस्तों और रिश्तेदारों ने पूछा, अबू मोहम्मद, वो शख्स कौन है? हजरत शेख अबू मोहम्मद जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, क्या तुम उस शख्स को नहीं जानते? वो मेरे मर्द बुजुर्ग, मेरे उस्ताद गिरामी के अलावा और कौन हो सकता है? अहले खाना और अहबाब ने घर चलने के लिए बहुत जोर दिया, मगर शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी एक न मानी।
और तवील सफर की थकन के बावजूद हजरत शेख की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द को देखकर बहुत खुश हुए और दुआओं से सरफराज फरमाया। दूसरे दिन शेख अबू मोहम्मद जरैरी रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर दस्तक दी। आप रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले तो देखा कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर जलवा अफरोज हैं। शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हैरत से उस्ताद गिरामी की तरफ देखा और निहायत अदब के साथ अर्ज किया, सैयदी आपने क्यों जहमत की? मैं इसलिए तो पहले खुद हाजिर हो गया था कि आप जहमत से बच जाएं। जवाब में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अबू मोहम्मद, मेरे घर में आने में सबकत करना तुम्हारा फेल था, इससे तुम्हारी शराफत नफ्स का इजहार होता है, मगर मेरा आना अपनी जगह है। तुम्हारे हुस्न इखलाक का हक अदा करना मुझ पर वाजिब है। अगर तुम पहले चले आए तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हारा हक मुझ पर से साकित हो गया। इस वाक्य से अंदाजा किया जा सकता है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तवाज़ु और इनकसार के किस दर्जे पर फाइज थे। नाज़रीन, हजरत जुनैद बगदादी की हयात में पेश आने वाला हर वाकया दर्स से इबरत था। एक बार हजरत जुनैद बगदादी मस्जिद शुनेजिया में तशरीफ फरमा थे और किसी जनाजे के मुंतजिर थे। इसी दौरान मस्जिद में एक फकीर दाखिल हुआ और उसने लोगों से मांगना शुरू कर दिया। फकीर का ये रंग देखकर हजरत जुनैद बगदादी ने दिल में सोचा, काश ये शख्स किसी एक के सामने अपनी हाजत बयान करता और इस तरह तमाम लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि मैदान में एक जनाजा लाया गया। हजरत जुनैद बगदादी ने नमाज जनाजा अदा की और घर तशरीफ ले आए। फिर जब आप रात को सोए तो एक अजीब मंजर देखा। हजरत जुनैद बगदादी एक कमरे में तशरीफ फरमा है। अचानक एक गोशे से कुछ लोग बरामद हुए। वो एक लाश को उठाए हुए थे। फिर वो लाश हजरत जुनैद बगदादी के सामने रखी गई। आप बड़ी हैरत और खामोशी से अजनबी इंसानों का ये अमल देख रहे थे। जुनैद, इसका गोश्त खाओ। अजनबी लोगों ने आपको मुखातिब करते हुए कहा, मैं मुर्दा खोर नहीं हूँ, फिर इस मुर्दे का गोश्त किस तरह खाऊं? हजरत बगदादी ने नाखुशगवार लहजे में कहा, कल जिस तरह मस्जिद में बैठकर खाया था उसी तरह खाओ। ये कहकर वो अजनबी लोग चले गए, मगर लाश रखी रही। हजरत जुनैद बगदादी फौरन समझ गए कि उन्हें इस तरह तंबीह की जा रही है। आपने गौर से लाश की तरफ देखा। ये उसी फकीर की लाश थी जो मस्जिद में भीख मांग रहा था और जिसे देखकर हजरत जुनैद बगदादी ने दिल में सोचा था कि काश ये शख्स किसी एक के सामने अपना दस्ते तलब दराज करता। ये एक किस्म की गीबत थी और गीबत के बारे में हक ताला का इरशाद है कि जिसने किसी इंसान की गीबत की गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अजनबी लोगों ने इसी तरह इशारा किया था। हजरत जुनैद बगदादी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, ये तो गीबत की सजा है। बेशक उस फकीर की तरफ से मेरा दिल में बुरा ख्याल गुजरा था, मगर मेरे दिल की बात जुबान पर नहीं आई थी। फौरन ही एक सदाए गैब सुनाई दी, जुनैद, तुम जिस मर्तबे के इंसान हो उसके दिल में इस किस्म का ख्याल गुजरना भी वैसा ही गुनाह है जैसा कि किसी दूसरे इंसान से अमली तौर पर सरजद हो। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी पर रिक्कत तारी हो गई और आपने निहायत आजिज़ी के साथ तौबा की, खुदाया, मैंने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया है। अगर तूने मुझे माफ नहीं फरमाया और मेरे हाल पर रहम नहीं किया तो मैं खसारा पाने वालों में शामिल हो जाऊंगा। जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी की जुबान से ये अल्फाज अदा हुए, वो लाश गायब हो गई। नाज़रीन कराम, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। आपका वाक़या है कि एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा, और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि अल्लाह कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे सवाल कर लूं। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी झुककर सलाम करने लगा। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखकर कहा कि कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरज़ू और तमन्ना थी। हजरत समझ गए कि असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतल्लिक एक सवाल है। सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया? क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह ताला की अजमतों और जलालतों से तो वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की गुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर, तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? इस पर शैतान का जवाब क्या था वो सुनने के काबिल है। उसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में सवाल आ रहा है मुशरिकाना सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैर अल्लाह को क्यों सजदा कर लेता? आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना सवाल मेरे से कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये मुझसे बात कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है।
और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है, इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होशो आवाज बाकी न रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझसे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज को सजदा करो तो तौहीद उसी का नाम है, उसकी बात को मान लिया जाए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तजल्जुल पैदा हो गया। सफर हज का वाक़या है कि एक रात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तन तनहा तवाफ काबा के लिए हाजिर हुए तो एक औरत भी खाना खुदा का तवाफ कर रही थी। अचानक औरत की पुरसोज आवाज उभरी, वो तवाफ के साथ कुछ आशिकाना अशार भी पढ़ती जाती थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह औरत के इस अमल को कुछ देर तक बर्दाश्त करते रहे। फिर जब उस खातून की आवाज तवाफ में खलल अंदाज होने लगी तो आप रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब पहुंचे और निहायत पुरजलाल लहजे में फरमाने लगे, ऐ बेखबर, तुझे इस मुकद्दस और मोहतरम मकाम पर अपनी नापाक आरज़ुएं बयान करते हुए शर्म नहीं आती। औरत ने माजरत करने के बजाय उसी किस्म के चंद और आशिकाना अशार पढ़ दिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मजीद कुछ कहना चाहते थे कि वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगी, मैं क्या कर रही हूँ, उसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि खुदा का तवाफ करते हो या खाना खुदा का। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी तामुल के बगैर फरमाया, हम अहले ईमान खाना खुदा का तवाफ करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर औरत बेकरार हो गई और उसने आसमान की तरफ देखते हुए निहायत पुरसोस लहजे में कहा, तेरी जात पाक है, तेरी मखलूक में ऐसे लोग भी हैं जो पत्थर की तरह बेहिस हैं और पत्थर के गिर्द तवाफ करते थे, उन्हें बता कि तेरी मर्जी क्या है और तू उनसे क्या चाहता है। औरत की जुबान से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर वजद की ऐसी कैफियत तारी हुई कि दुनिया और माफिया से बेखबर हो गए। फिर जब होश आया तो वो औरत गायब थी जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह को बड़े मौसर और मुनफरिद अंदाज में तौहीद परस्ती का सबक दिया था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक साहिब हाजिर हुए। आपने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अर्ज किया, हज से वापस आ रहा हूँ। आपने पूछा, हज कर चुके? अर्ज किया, कर चुका। आपने फरमाया, जिस वक्त घर से रवाना हुए और अजीजों से जुदा हुए थे, अपने तमाम गुनाहों से भी मुफारकत की नीयत कर ली थी? कहा, नहीं, ये तो नहीं किया था। फरमाया, बस फिर तुम सफर हज पर रवाना ही नहीं हुए। फिर पूछा, राह हक में जूं जूं तुम्हारा जिस्म मंजिलें तय कर रहा था, तुम्हारा कल्ब भी कुर्ब हक की मनाजिल तय करने में मसरूफ था? जवाब दिया, नहीं, ये तो नहीं हुआ। इरशाद हुआ, फिर तुमने सफर हज की मंजिलें तय ही नहीं की। फिर पूछा, जिस वक्त एहराम के लिए अपने जिस्म को कपड़ों से खाली किया था, उस वक्त अपने नफ्स से भी सिफाते बशरिया का लिबास उतारा था? कहा, नहीं, ये तो नहीं हुआ था। इरशाद हुआ, फिर तुमने एहराम ही नहीं बांधा। फिर पूछा, अरफात में वकूफ किया तो कुछ मार्फत भी हासिल हुई? कहा, नहीं, ये तो नहीं हुआ था। इरशाद हुआ, फिर अरफात में वकूफ ही नहीं किया। फिर पूछा, जब मजदलफा में अपनी मुराद को पहुंच चुके तो अपनी हर मुराद नफसानी के तर्क भी ऐद किया था? कहा, नहीं, ये तो नहीं किया था। इरशाद हुआ कि फिर तवाफ ही नहीं हुआ। फिर पूछा, जब सफा मरवा के दरमियान सही की तो मकाम सफा और दर्जा मरवा का भी कुछ अदराक हुआ था? कहा, नहीं, ये तो नहीं हुआ था। इरशाद हुआ, फिर तुमने सही भी नहीं की। फिर पूछा, जब मना आए थे तो अपनी सारी आरजुओं को तुमने फना किया था? कहा, नहीं, ये तो नहीं किया था। इरशाद हुआ, फिर तुम्हारा मना जाना ला हासिल रहा। फिर पूछा, कुर्बानी के वक्त अपने नफ्स की गर्दन पर भी छुरी चलाई थी? कहा, नहीं, ये तो नहीं किया था। इरशाद हुआ, फिर तुमने कुर्बानी ही नहीं की। फिर पूछा, जब कंकरियां मारी थी तो अपने जहल और नफ्सियात पर भी मारी थी? कहा, नहीं, ये तो नहीं किया था। इरशाद हुआ, तुमने फिर रमी भी नहीं की। इस सारी गुफ्तगू के बाद आखिर में फरमाया, तुम्हारा हज करना न करना बराबर रहा, अब फिर जाओ और सही तरीके पर हज करो। नाज़रीन, एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हजरत हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर की तरफ से गुजरते देखा। हजरत हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर शदीद नकाहत और बदमज़दगी के आसार नुमाया थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कैफियत देखकर अंदाजा कर लिया कि शेख फाके से हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किसी तामुल के बगैर अर्ज किया, चचा, घर में तशरीफ लाइए और कुछ तनावल फरमा लीजिए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख को चचा कहकर पुकारते थे, गो के उनके निस्बी चचा नहीं थे। हजरत शेख हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर अपने शागिर्द की तरफ देखा और फरमाया, बेहतर है। ये कहकर उनके घर तशरीफ ले आए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख के सामने दस्तरखान बिछाया और पुरतकल्लुफ खाना रख दिया। इत्तफाक से गुज़श्ता रात पड़ोस में शादी थी और ये खाना वहीं से आया था। हजरत शेख हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लुकमा लिया और अपने मुंह में रख लिया।
حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت شیخ حارث نے کئی بار اس لقمے کو منہ میں گھمایا اور پھر دفعتاً دسترخوان چھوڑ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ شیخ کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت حارث محاسبی رحمتullah علیہ نے دروازے سے نکل کر ایک گوشے میں وہ لقمہ اگل دیا اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ سے ان کے طرز عمل کے بارے میں کچھ دریافت کر سکیں۔ 2-4 دن بعد جب خلوت میسر آئی، حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے استاد محترم کو اس روز کا واقعہ یاد دلا دیا۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمتullah علیہ نے جواب میں فرمایا، اس دن میں فاقے سے تھا، میں نے چاہا کہ کچھ کھا کر تمہارا دل خوش کر دوں، مگر خدا نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ اگر غذا کے کسی لقمے میں کسی قسم کا شبہ ہو تو میرے حلق سے نہیں اترتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکا۔ اس کے بعد حضرت شیخ حارث محاسبی نے اپنے شاگرد سے پوچھا، وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے شرمسار انداز میں عرض کیا، دراصل وہ کھانا پڑوسی نے بھیجا تھا۔ حضرت شیخ حارث رحمتullah علیہ نے فرمایا، مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ کھانا تمہارے گھر کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے شیخ کو اپنی طرف متوجہ پا کر درخواست کی، آپ اس روز بغیر کھانا کھائے تشریف لے آئے تھے، اگر آج مجھے سعادت بخشیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ حضرت جنید رحمتullah علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شیخ آج بھی فاقے سے ہیں، اسی لیے آپ نے حضرت حارث محاسبی رحمتullah علیہ سے گھر چلنے کی التجا کی تھی۔ حضرت شیخ فوراً آمادہ ہو گئے، مگر اتفاق سے اس روز حضرت جنید بغدادی رحمتullah کے یہاں سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کو بہت خفت محسوس ہوئی، لیکن شیخ رحمتullah علیہ کے بھوکے ہونے کے خیال سے آپ نے وہی خشک روٹی پیش کر دی۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب حضرت شیخ حارث نے وہ سوکھی روٹی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھائی اور پھر بڑے پرجوش لہجے میں فرمایا، جب کسی فقیر کی دعوت کرنا ہو تو ایسی ہی چیز پیش کیا کرو۔ یہی وہ مرد جلیل تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ 3 سال تک فیضیاب ہوئے۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمتullah علیہ کا انتقال 234 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کی عمر مبارک 28 سال کے قریب تھی۔ جنید بغدادی رحمتullah علیہ اپنے استاذ شیخ حارث محاسبی رحمتullah علیہ کو یاد کر کے اکثر فرمایا کرتے، افسوس معرفت کا آفتاب غروب ہو گیا اور میں اپنے خانہ دل کو اس کی ضیاء باریوں سے منور نہ کر سکا۔ بے شک حضرت جنید رحمتullah علیہ کا جذبہ طلب تسکین نہ پا سکا، مگر حضرت شیخ حارث محاسبی رحمتullah علیہ کی شکل میں آپ نے اس مرد جسور و غیوث کو دیکھ لیا تھا جس کی پیشانی نیاز خدا کے سوا کسی کے آستانے پر خم نہیں ہوئی۔ حضرت سری سکتی رحمتullah کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے فیضیاب ہو جائیں۔ پھر جب حضرت ابو ثور رحمتullah علیہ اور حضرت شیخ حارث محاسبی رحمتullah علیہ جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ اپنے والد محترم کی دکان پر بیٹھے تھے۔ اس وقت جناب محمد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت جنید رحمتullah علیہ نے شیشے کی آبائی تجارت چھوڑ کر ریشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ کو کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا پڑے۔ پھر یہ دکان بھی بند کر دی اور حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کے مکان میں گوشہ نشین ہو کر شدید مجاہدے کیے۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ نے بڑے عجیب انداز سے آپ کی روحانی تربیت کی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا قصہ سنائیے جس سے عشق کی سچائی کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ نے ایک کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کاغذ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اسے پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے 700 قصوں سے بہتر ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے تنہائی میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو عربی زبان کے 3 اشعار درج تھے کہ جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ بولی کہ تم جھوٹے ہو، اگر تمہیں محبت ہے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اتنے درست کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ محبت اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک پیٹ کمر سے نہ لگ جائے اور تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں پکارے تو جواب نہ دے سکو، اور اس قدر گھل جاؤ کہ گوشہ چشم کے سوا کچھ باقی نہ رہے جس سے تم آنسو بہاؤ اور عاجزی کرو۔ یہ اشعار پڑھ کر حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ کے سینے میں آتش عشق اس طرح بھڑکی کہ حق تعالیٰ کی یاد کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کے روحانی اسباق بہت سادہ نظر آتے ہیں، مگر ان کی گہرائی کو سمجھ کر عمل پیرا ہونا بہت دشوار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ نے پیر و مرشد کے درس کو بغور سنا اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کیا، یہاں تک کہ آپ پر معرفت کے عجیب عجیب اسرار
मुनकशफ होने लगे। आप अपने उसी रूहानी इनकलाब के बारे में फरमाते हैं, मैंने पीर व मुर्शद को अक्सर ये कहते सुना था कि इश्क में बंदा तरक्की करके उस दर्जे तक पहुंच जाता है, अगर कोई उसके चेहरे पर तलवार भी मारे तो उसे खबर ना हो। मुझे इस बात के दुरुस्त होने में शक था कि क्या इंसान पर ऐसी कैफियत भी तारी हो सकती है, मगर मैं खुद उसी हालत से गुजरा तो मुझे पीर व मुर्शद के कौले मुबारक पर यकीन आया कि बचपन में हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपके बारे में फरमाया कि खुदा तेरी जुबान से फैज जारी करेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का बहुत कलक था। आप समझते थे कि पीर व मुर्शद का इशारा तकरीर व कलाम के जरिए दुनियावी कामयाबी हासिल करने की तरफ है। फिर जब आप हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के हल्का इरादत में शामिल हुए तो अक्सर पीर व मुर्शद की उस पेश गोई को याद करके उदास हो जाते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह समझते थे कि आखिरत की कामयाबी आपकी किस्मत में नहीं है। वक्त गुजरता रहा और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रियाजात और मुजाहिदात के साथ पीर व मुर्शद की खिदमत गुजारी में मसरूफ रहे। आखिर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपका सारा रंजो मलाल दूर कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक रोज मेरे पास 4 दिरहम थे। मैंने उन्हें पीर व मुर्शद की खिदमत में पेश करते हुए अर्ज किया, ये आपकी नजर है, उन्हें कबूल फरमा लीजिए। हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद खुश एतकाद के इस तरस अमल से बहुत खुश हुए और किसी तामुल के बगैर वो दरहम कबूल फरमाए। फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करते हुए बोले, नौजवान, तुझे फलाह उखरवी हासिल होने की बशारत हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को पीर व मुर्शद के इरशाद करामी पर हैरत हुई। फिर निहायत पुरशौक लहजे में अर्ज करने लगे, आप किस वजह से फरमाते हैं? हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस वक्त 4 ही दरहम की जरूरत थी और मैंने दुआ मांगी थी कि इलाही ये रकम मुझे उस शख्स के हाथ से दिलवा जो तेरे नजदीक फलाह पाने वाला हो। अल्लामा याफई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि इस खुशखबरी के बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वो मलाल दूर हो गया जो पीर मुर्शद की पहली पेशगोई से आपके दिल पर नक्श हो गया था। फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत इस दर्जे तक पहुंच गई थी कि हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह भी आपकी गुफ्तगू सुनकर हैरान रह जाते थे। नाजरीन, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को तवील अरसे से अल्हामी किस्म के ख्वाब आते रहे। ये एक मुनफरिद अंदाज की रूहानी तरबियत थी। फिर उसी रूहानी तरबियत ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को सैयदुत ताइफा बना दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब था जिसका मफ़हूम है अपने जमाने के सरदारों का सरदार। एक रात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए उठे। फिर जब आपने नियत बांधने का इरादा किया तो एक नाकाबिले बयान अस्तराब तारी हो गया। हजरत जुनैद बगदादी कमरे में टहलने लगे मगर बेकरारी की वो कैफियत खत्म नहीं हुई। आखिर आप बिस्तर पर जाकर लेट गए और गौर करने लगे कि इस बेचैनी का सबब क्या है। खुदावंद, मैं नहीं जानता कि आज ये बेसुकूनी क्यों है और मुझे यकसुई क्यों मुयस्सर नहीं है। ये सोचते सोचते बहुत देर गुजर गई मगर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी करवट चैन नहीं आता था। फिर ये इस्तराब वहशत में तब्दील हो गया और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए और खुली फिजा में टहलने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा जो बीच रास्ते में चादर ओढ़े लेटा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन शख्स है जो रात के पिछले पहर इस तरह सरे राह सो रहा है। आप आहिस्ता कदमों से आगे बढ़े ताकि सोने वाले की नींद में खलल वाक़ ना हो। हजरत जुनैद बगदादी दबे पांव गुजर जाना चाहते थे मगर जब आप उस शख्स के करीब पहुंचे तो वो यकायक उठकर बैठ गया। हजरत जुनैद बगदादी को उस शख्स के इस तरह बेदार हो जाने पर बड़ी हैरत हुई। फिर वो आपको मुखातिब करके कहने लगा, अबुल कासिम, आपने आने में इतनी देर की? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उस शख्स की बात सुनकर मुझ पर रौब सा तारी हो गया। फिर मैंने जरा संभल कर उसे जवाब दिया, मुझे क्या खबर थी कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? फिर ये कि आपसे कोई वादा तो नहीं था कि जिसकी पाबंदी मुझ पर फर्ज होती? उस शख्स ने कहा, अबुल कासिम, आप सच फरमाते हैं मगर मैंने खुदावंद जुल जलाल से जो दिलों को हरकत देता है और मुकल्लबुल कलूब है, ये दुआ की थी कि आपके दिल को हरकत देकर मेरी जानिब माइल कर दे। बेशक हक ताला ने मेरे दिल को आपकी तरफ माइल कर दिया, मगर ये तो बताइए क्या मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। उस शख्स ने कहा, अबुल कासिम, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। ये सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत गौर से उस शख्स का सवाल सुनते रहे। सवाल ये था कि मर्ज़ नफ्स कब नफ्स दवा बन जाता है? जब वो शख्स अपनी बात मुकम्मल कर चुका
तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करता है तो उस हालत में नफ्स का मर्ज ही दवा बन जाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनते ही उस शख्स ने अपने दिल को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने तुझे 7 बार यही जवाब दिया मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। हर मर्तबा यही कहता रहा कि जब तक जुनैद नहीं कहेंगे उस वक्त तक नहीं मानूंगा। अब तो तूने सुन लिया कि जुनैद क्या कहते हैं। ये कहकर वो शख्स तेज रफ्तारी के साथ चला गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक हैरत और सकूत के आलम में खड़े सोचते रहे कि वो शख्स कौन था और कहां से आया था। हजरत जुनैद बगदादी ने इरादतन कभी किसी करामत का इजहार नहीं किया मगर बड़े बड़े मशाइख आपकी रूहानी तसर्रुफ के कायल थे। शेख खैर निसाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई। उन्होंने हजरत जुनैद बगदादी के साथ पेश आने वाला अपना एक अजीब वाकया बयान फरमाया है जिसे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोरा आफाक नफातुल उन्स में ये वाकया बयान किया कि मशहूर बुजुर्ग कहमश बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हमदान में रहते थे और अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर थे। एक दिन रात के वक्त किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू मोहम्मद कहते हैं कि दस्तक की आवाज सुनते ही मेरे ख्याल में आया कि शेख जुनैद आए होंगे। हालांकि हजरत जुनैद उस वक्त हमदान से बहुत दूर बगदाद में क़याम फरमा थे। फिर जैसे ही अबू मोहम्मद घर से बाहर आए, हजरत जुनैद बगदादी को दरवाजे पर अपना मुंतजिर पाया। अबू मोहम्मद, मैं खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए बगदाद से यहाँ आया हूँ, हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया और बड़ी गर्म जोशी के साथ मिले। फिर कुछ देर तक गुफ्तगू करते रहे, उसके बाद तशरीफ ले गए। दूसरे दिन मोहम्मद ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तलाश किया मगर आप रहमतुल्लाह अलैह का कहीं पता नहीं था। काफिले वालों से जाकर पूछा तो उन लोगों ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मशहूर बुजुर्ग अफीफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। रवानगी से पहले मैंने सोचा था कि शेख जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिरी दूंगा मगर जब बाजार पहुंचा तो अपनी सूफियत और दरवेशी का गरूर आड़े आ गया। मैं तकरीबन 40 दिन तक बगदाद में रहा मगर शेख जुनैद की खिदमत में हाजिर न हो सका। इस दौरान मेरा मामूल था कि जब अपने औराद व वज़ाइफ से फारिग हो जाता तो शहर के बाहर जाकर किसी पाक व साफ चश्मे से पीने के लिए पानी ले आता। एक दिन मैं पानी लेने की गर्ज से जंगल में चला जा रहा था कि एक हिरन को देखा जो कुएं में मुंह डालकर पानी पी रहा था। फिर जब मैं करीब पहुंचा तो हिरन भाग गया। मैंने झांक कर देखा तो पानी बहुत गहराई में था। मैंने डोल डाला मगर रस्सी छोटी होने की वजह से पानी तक ना पहुंच सका। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो हिरन किस तरह अपनी प्यास बुझा रहा था। ये मेरी आंखों का धोखा था या फिर हिरन के लिए कुएं का पानी छलक उठा था। मैं कुछ देर तक इसी जहनी कशमकश में मुब्तला रहा। आखिर पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। अब मेरा सफर जारी था कि यकायक एक सदाए गैबी सुनाई दी। वो तेरी आंखों का धोखा नहीं था, खुदा की कुदरत से पानी ने यहाँ तक जोश मारा कि हिरन के होंठों तक पहुंच गया। सदाए गैब सुनकर मैंने अर्ज किया, खुदावंद क्या मेरा मर्तबा उस हिरन से भी कम है? मेरी शिकायत के जवाब में हातिफ गैब ने कहा, हमने तुझे आजमाया मगर तू आजमाइश में पूरा नहीं उतरा। हजरत अफीफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं नदामत और शर्मसारी के आलम में आगे बढ़ जाना चाहता था कि वही आवाज दोबारा सुनाई दी, खैर वो वक्त तो गुजर गया, दोबारा कुएं पर जाओ, तुम्हें पानी मिल जाएगा। मैं तेज कदमों के साथ वापस आया तो वाकई कुआं छलक रहा था। मैं अपना डोल भरकर वापस आ गया। फिर जब खाने के बाद मैंने पानी पीना चाहा तो वही सदाए गैब गूंजने लगी, तूने अभी तक उस राज को समझने की कोशिश नहीं की, हालांकि तुझे अपनी दरवेशी पर बड़ा नाज है। ये आवाज सुनकर मैं लरस गया। खुदावंद मैं बहुत आजिज हूँ, कमजोर हूँ, मुझ पर रहम फरमा। मेरी गिरियावजारी के जवाब में हातिफ गैब ने कहा, हिरन बगैर डोल के आया था और तू साजो सामान के साथ कुएं तक पहुंचा, इसलिए हमने दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक किया। अफीफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस पानी में खास बात यह थी कि मैं जब तक बगदाद में मुकीम रहा वो पानी खत्म नहीं हुआ। जिस कदर पीता था उसी कदर बर्तन में मौजूद पाता था। फिर कुछ दिन बाद हजरत अफीफ रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए चले गए। फिर वापसी में दोबारा बगदाद आए मगर हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर न हो सके। एक रोज नमाज के लिए जामे मस्जिद पहुंचे तो इत्तफाकन हजरत जुनैद बगदादी से मुलाकात हो गई। अफीफ रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही आपने फरमाया, अगर तुम सब्र करते तो खुद तुम्हारे पांव के नीचे चश्मा जारी हो जाता, काश तुमने एक घड़ी सब्र से काम लिया होता। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कुव्वत कशफ पर हजरत अफीफ रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी ने तोहफे के तौर पर एक परिंदा भेजा जिसे आपने कबूल फरमा लिया। काफी अरसे तक वो परिंदा आपके पास एक पिंजरे में बंद रहा। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पिंजरे की खिड़की खोली और इस परिंदे को आजाद कर दिया। लोगों ने जब ये देखा तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि जनाब इतने अरसे तक तो आपने इस परिंदे को पिंजरे के अंदर बंद कर रखा था और देखभाल करते रहे, आज अचानक पिंजरा खोलकर उसे आजाद क्यों कर दिया?
ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आज उस परिंदे ने मुझसे कहा, है जुनैद, तुम तो अपने दोस्त अहबाब की बातों से यूं लुत्फ उठाओ और मुझे बेमोनस व गमखार एक पिंजरे में यूं बंद रखो। तो मैंने उसे आजाद कर दिया, मगर जब वो परिंदा उड़ा तो उसने कहा, है जुनैद, परिंदे जब तक जिक्र इलाही में मसरूफ रहते हैं उस वक्त तक किसी भी जाल में नहीं फंसते, लेकिन जो ही वो जिक्र इलाही से गाफिल होते हैं तो फौरन कैद में मुब्तला हो जाते हैं। फिर वो परिंदा कहने लगा, मैं तो एक ही मर्तबा जिक्र इलाही से गाफिल हुआ था कि उसकी सजा में बरसों कैद रहा। हाय जुनैद, उन लोगों की कैद का जमाना कितना तवील होगा जो मुद्दतों तक जिक्र इलाही से गाफिल रहते हैं। ऐ जुनैद, मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि अब कभी जिक्र इलाही से गाफिल नहीं होऊंगा। ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। उसके बाद भी कभी कभी वो परिंदा हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के पास आता था और आपके दस्तरखान पर बैठकर अपनी चोंच से कुछ खाता था। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो आपके साथ वो परिंदा भी तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। लोगों ने उस परिंदे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद किसी मुरीद ने हजरत को ख्वाब में देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया और मुझ पर रहम फरमाया और कहा, तूने एक परिंदे पर उसके जिक्र इलाही करने की वजह से रहम किया, हम तुझ पर रहम फरमाते हैं। इस वाक़े में उन लोगों के लिए इबरत का सामान मौजूद है जो हर वक्त जिक्र इलाही से गाफिल रहकर अपनी जुबान से लहो-लब के कलमात की अदायगी में लगे रहते हैं। नाज़रीन, याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमे में जिक्र करता है तो मैं उस मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में उसका तस्करा करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा जहाद का अजर सबसे ज्यादा है? इरशाद फरमाया, जिस जहाद में अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज्यादा हो। पूछा, रोजादारों में सबसे ज्यादा अजर किसे मिलेगा? इरशाद फरमाया, जो रोजादार अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला हो। फिर इसी तरह नमाज, ज़कात, हज और सदका के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज, ज़कात, हज और सदका अफजल है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, अबू हिफ्स, जिक्र करने वाले सारी खैर व भलाई ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ठीक कहते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हाल हमेशा वैसा ही रहे जैसा मेरे पास होता है और तुम हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफिया करने लगे। लेकिन हंजला बात यह है कि ये कैफियत कभी कभी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, यानी इंसान की एक ही कैफियत हर वक्त नहीं रहती बल्कि हालात के एतबार से बदलती रहती है। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है और जो जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। जिक्र करने वाला जिंदा और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। एक रिवायत में ये भी है कि उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता हो जिंदा शख्स की तरह है, यानी वो आबाद है, और जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना होता हो वो मुर्दा शख्स की तरह है, यानी वीरान है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जिक्र की लज्जतें और बरकतें अता फरमाए और हमें कसरत से जिक्र करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।